کچھ ساتھیوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو جی کاشف صاحب سے بات شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب میرا سوال ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو شام تک پیاس کی زیادہ شدت ہو جاتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، وضو کیا ہے نماز کے لیے تو منہ میں تو پھر ٹھنڈک محسوس ہوگی، تو تقوی کے لحاظ سے کتنی دفعہ بندے کو تھوکنا چاہیے تاکہ بندے کا یقین ہو جائے کہ اب میرا روزہ خراب نہیں ہوگا وضو کے بعد، کیونکہ جب بندہ کلی کرے گا منہ میں پانی ڈالے گا. جتنی دیر میں اس کو یقین آ جائے کہ یہ اب وضو والا پانی نہیں ہے، تھوک والا پانی. اور بعض لوگ کی سوچ بن جاتی ہے، اس نے 4-5 دفعہ تھوک لیا پھر نماز میں کھڑا ہو گیا، جب اس کی سوچ ادھر ہوگی تو پھر اس کے منہ میں تھوک اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. اس تھوک کا کوئی حرج نہیں. وہ کتنی مقدار میں ہوگی پھر وہ نکل سکتا ہے؟ پانی باہر سے آیا تھا جی وضو کے دوران کلی میں، جی وہ باہر سے نکل گیا، نکل گیا. 2-3 بار تھوک بھی دیا، جی باہر والا پانی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. منہ بند کر لیا، جی نماز میں کھڑے ہیں، جی نماز کے اندر ہی یا بغیر نماز کے ہی منہ میں سے ہی تھوک آئی، منہ میں ہی پیٹ میں چلی گئی، وہ 1 لیٹر آ کے چلی گئی، کوئی تکلیف نہیں ہے. ہونٹوں کے باہر سے کوئی چیز گئی، وہ ایک قطرہ گیا، وہی پھنس جانا ہے. جیسے نماز میں جو اندر کا ہی نظام ہے، جی باہر سے کوئی چیز نہیں آئی اور اس کو سپیشل نہیں لے کر آئے. پوائنٹ یہی ہے کہ سپیشل آنے والی، سپیشل کچھ نہیں کیا، خود ہی آ رہی ہے. بس میں ہے نہیں ہے، جو بس میں نہیں ہے اس پہ شرع نہیں ہے. جیسے نماز میں ہے کہ اگر ایک چنے کے دانے کے برابر نماز کے دوران اندر چلی گئی ہلکی سی چیز، نماز ٹوٹ گئی. ہاں اگر اس نے پہلے سوچا کیونکہ کہ وہ باہر سے آئی تھی، وہ ہمارے جسم سے تو نہیں نکلی تھی. چنے برابر کوئی چیز پیٹ میں گئی، وہ باہر سے آئی تھی یا ہمارے جسم سے نکلی تھی؟ باہر سے آئی تھی. پوائنٹ وہیں کھڑا ہے. اگر ایک قطرہ بھی باہر سے آگے گلے سے گزر گیا اس کا مسئلہ تو کھڑا ہو گیا. جو باہر سے کچھ نہیں لے کر آئے، منہ کے اندر ہی خود بخود ہی نظام ہے، اس کے اوپر قانون الگ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 4 بار آ کے چلے گئی، وہ تو مجبور ہے، اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. نماز میں کھڑا ہے تھوک سکتا نہیں، مسجد میں کھڑا ہے تھوک سکتا نہیں، باہر سے تو لیا نہیں، لہٰذا اس کا پیٹ میں چلے جانا کوئی نہ روزے پہ اثر کرے گا نہ نماز پہ اثر کرے گا. ہاں غذا کا دانہ کھڑا ہوا تھا، اس کو صاف کرنے کا پہلے سے حکم ہے کہ آپ نے وضو کے دوران وضو سے پہلے کلی کرنی ہے، مسواک کرنا ہے، منہ کو صاف کرنا ہے، حلق تک پانی پہنچانا ہے، دانتوں کو صاف کرنا ہے. یہ سارے کام کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ کوئی ذرہ باہر والا نہ رہ جائے. جو حلق سے گزر گیا بس وہ ہو گیا اور جسم میں چلا گیا. جو حلق کے گزرنے سے پیچھے ہے اس کے اوپر قانون کھڑا ہے. اگر نماز پڑھ رہا ہے تو جیسے اگر کسی کو زکام ہوتا ہے، زکام میں ریشہ ہوتا ہے، تو نماز کے دوران وہ ریشہ اس کے حلق میں آ گیا، ٹھیک ہے، کیا اس نے جان بوجھ کے لے کر آیا؟ نہیں، اس کو تو بیماری ہے، وہ تو آ گیا. اور جسم کے باہر سے اندر آیا، دونوں پوائنٹ ذہن میں رکھنے. جہاں پہ پرابلم کھڑی ہونی ہے نا وہ یہیں پہ کھڑی ہونی ہے. کیا جسم کے باہر سے آیا؟ کیا اس نے جان بوجھ کے لیا؟ مثلا ناک میں کھڑا تھا، اس نے جان کے کیا اور وہ گیا. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن اس نے جان کے کیا. اب گئی نماز، وضو بھی کیا، روزہ بھی گیا، جان بوجھ کے کیا. اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ناک سے کیرا دماغ سے کیرا گر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے نہ گرے، لیکن اس کے پاس میں نہیں ہے،
वो किरा ऊपर से खुद बखुद उसके गले में आया और उसको बोलने से पढ़ने में रुकावट पैदा कर रहा है। वो केरे की वजह से उसको उल्टी आने का चांस पैदा हो रहा होता है ना ऐसे, ख़ास तौर पे शुरू के रोज़ों में अक्सर होता है, ठीक है, क्यों केरा गिरना शुरू हो जाता है, उससे ऐसे लगता है उल्टी आ रही है। अच्छा, आगे पीछे नहीं आएगी, नमाज में खड़े आएगी। ये भी मैंने कई बार खुद मेरे साथ भी हुआ और लोगों से भी मैंने देखा कि वो नमाज में ही ख़ास तौर पर शुरू होगी। कानून वही, क्या हमने उसको इरादे से लेकर आए हैं, क्या हमारे जिस्म से बाहर से आया? अगर बाहर से नहीं आया और हमने इरादे से उसको लेकर नहीं आए, ऊपर से ही है, खुद बखुद है, मजबूरी वाला है, उसको चुप करके जाने दें, ना वज़ू टूटेगा, ना नमाज टूटेगी, ना रोज़ा टूटेगा। हुजूर मेरा एक सवाल, जी जब मुअज्जिन अजान देता है हाँ, तो अगर उसका दरमियान में ही वज़ू टूट जाए अजान देते हुए, ठीक है, तो उसके बारे में क्या वो है? अजान देगा या अजान पूरी कर ले और जाके वज़ू करके नमाज पढ़े। अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर अजान वाले के लिए वज़ू फ़र्ज नहीं है, ठीक है, अजान वाले के लिए जुनूबी नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज है तो फिर उसके अजान नहीं है। अगर उसके ऊपर वज़ू नहीं है और जान के वो कर रहा है कि भी मेरा वज़ू नहीं है, कोई बात नहीं, अजान ही देनी है, फिर कोई नहीं अजान हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने अजान की तौहीन की है, ठीक है। एक बंदा अजान पढ़ रहा है और वो बीमार भी है, कैफियत उसके कंट्रोल से बाहर है, गैस खारिज हो गई है, उसकी अजान पूरी हो गई, वो जाके वज़ू करके नमाज में शामिल होगा और उस अजान को लौटाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आदतन वो ऐसा करे फिर तो गलत है। आदत और मजबूरी और मरीज़ तीनों कानून अलग अलग। जी अच्छा हुजूर, एक सवाल है, मेरे सवाल भी रहते हैं। चलने उनके भी हैं खाने में। ये कुएं के अंदर अगर कुत्ता गिर जाता है, जो जी खूह होता है मेन, जी जी, उसको पाक करने के मुतल्लिक जो है वो शरीयत क्या हमारी रहनुमाई फरमाती है? आजकल तो कुएं होते ही नहीं है, वो तो कानून है। नहीं हाँ होती ठीक है, लेकिन बाहर के उसमें से पानी निकालने का हुक्म है। वो पता नहीं 72 डोल हैं कि कितने हैं, वो मुझे अभी ज़बानी याद नहीं है, चूँकि इस ज़माने का वो मसला नहीं है, ठीक है, हाँ पड़ा हुआ है, वो उसमें से उतना पानी निकालना है। जी जी तो लेकिन पानी निकालने से पहले एक और भी ज़रूरी चीज़ है। जी जी। वो कोई था ना ऐसे ही कुएं में कुत्ता गिर गया, तो लोगों ने जब मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा इतना पानी निकाल दो। उन्होंने पानी निकाल दिया, लेकिन पानी में बदबू नहीं गई। तो उन्होंने आके फिर पूछा, मौलवी साहब ने सोच सोच के अचानक उनके ज़हन में आया, तो उन्होंने कहा कुत्ता निकालना था? उन्होंने कहा नहीं, कुत्ता बीच में ही है, पानी निकाल लिया। पानी निकालने से पहले कुत्ता निकालना है, फिर पानी निकालना है, उसकी कोई लिमिट दी हुई है कि इतना पानी जो है ना वो निकालना ज़रूरी है। अच्छा, उसमें से कम अज़ कम शर्त ऐसा मुमकिन है छोटे कुएं की सूरत में मसला कि उतना पानी निकालने के बावजूद भी बाज़ औक़ात पानी से पाक नहीं होता। क्यों नहीं होता? पानी कुएं वाले पानी के ऊपर ख़ास तौर पर जब तक उसका रंग, बू और ज़ायका ये साफ़ हो जाएं, तीनों चीज़ें और गिनती जितनी उलमा ने बयान की है वो पानी निकल जाए तो ठीक है। वैसे फी ज़माना ऐसा है नहीं। जज़ाकल्लाह। खुश आमदीद। अच्छी इस पे कपड़ा बांध लें, हाँ जी, मेरा मुकम्मल वजू नहीं, इसनू ला के कर दें तो जख्म वादा प्या वधे, मैं उन्हें खोल छड़िया, इस तरह करना वा हुंदा रबे खराब। देखो जी, शरई लिहाज नाल अगर तुसीं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पट्टी बन ਦਿਓ जी और पट्टी ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਫੇਰ ਦਿਓ, हाँ जी, मसा कर लीजिए। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। हो गया ਅਲਬત્ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, जी ਇਹਨੂੰ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਔਲੀਆਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਫਤਵੇ ਦਾ जी जी ਕਿ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ। जी ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਕਵੇ ਦਾ, ਤਕਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਰਲਾ ਲਓ, जी
ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇਲ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, पानी ठहरेगा नहीं। ठीक ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ठीक ਔਰ ਤੇਲ ਜੁਜ਼ਵੇ ਬਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਜੁਜ਼ਵੇ ਬਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਤੇਲ, ਮੁਬਲਾਇਲ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਕਿ ਤੇਲ, ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ताकि वजू मुकम्मल होना चाहिए। ਉਹ ਮੌਜ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। इस दी ये जड़ा है मेरे मालिक ने वैसे ही ठीक कर देना, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे मालिक ने वैसे ही ठीक कर देना। मैं छोड़ दी थी पट्टी, सब कुछ छोड़ दी। काशिफ साहब की बात। बिस्मिल्लाह, मैं कर सकता हूँ मुकम्मल हो गया। इजाज़त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर रोज़े तशरीफ़ ला रहे हैं और रोज़े के मुतल्लिक़ है भी बड़ा पेचीदा सा सवाल और ऐसा कैफियत भी हुई है। एक बंदा जवान है, जवानी में है, अभी शादी उसकी नहीं हुई, और दूसरा इसी के अपोजिट अगर शादी हुई भी है, नहीं तो उसने रोज़ा रख लिया है, दोपहर में उसे ऊँघ आ गई, वो सो गया, ख्याल में कहीं और चला गया मामला, तो उसका एहतलाम हो गया, या सोया है और एहतलाम हो गया, ख्याल के बगैर हो गया है, तो रोज़ा उसका है, अब उस पर गुस्ल भी फ़र्ज़ हो गया है, तो रोज़े के ऊपर असर जो इस्लामी और शरई मामला है, रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, और गुस्ल फ़र्ज़ है तो कैसे करेगा? इतलाम के ऊपर रोज़ा असर, इतलाम रोज़े पर असर नहीं करता, ठीक है। अगर उसका इरादा बीच में शामिल था, वो जाग गया और उसने हाथ इस्तेमाल कर लिया, वो जाग गया, बीवी के साथ मेल मिलाप, लिपटाना इस दौरान में हो गया, जमा नहीं किया, लेकिन उसने जागने के बाद हो गया, अब उसका रोज़ा टूट गया, उसको उल्टा 60 रोज़े पड़ गए, ठीक है, क्योंकि उसने जानबूझ के तोड़ा। सोया हुआ नींद में इतलाम हो गया, 2 घंटे 4 घंटे बाद उठा, उसको पता लगा मेरे कपड़े ख़राब हैं, अब उसके ऊपर सिर्फ गुस्ल वाजिब है, उसका रोज़ा भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मारूफ तरीके के मुताबिक गुस्ल कर लेगा। गरारा वैसे करेगा हजूर जैसे करना, जितना वज़ू के अंदर गरारा कर रहा है उतना ही गरारा गुस्ल में करेंगे। रोज़े की हालत में वज़ू करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसमें गरारा करते हैं ना, जितना गरारा वज़ू में कर रहा है उतना ही गरारा गुस्ल में भी कर लेगा। भी गले से पानी गुजरना नहीं चाहिए, बस नॉर्मल। मैं समझ गया, ठीक हो। और नाक में पानी भी वैसे ही लगाए, नाक में पानी भी वैसे ही लगाएगा, नरम हड्डी तक नहीं, वैसे लगाए, जितना पहुंच जाए, कोई हर्ज नहीं। नरम हड्डी तक पानी पहुंचने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा गले को पानी पहुंचने से टूटता है। दूसरा हजूर इसमें बड़ा अहम सवाल है, ऐसा मैंने देखा और मेरे साथ भी हुआ, खाना खा लिया पता ही नहीं चला, भूख लगी, फील हुई, ये नया रोज़ा, बस पहले स्टेज में पहला दूसरा रोज़ा रूटीन बनी ना हजूर, तो वो आया और उसने ना मतलब खाना खा लिया, आधे में पहुंचा ना, उसको ख्याल है वो मेरा तो रोज़ा से कहता है, मैंने रोज़े है गए, एक दूसरा पहले दूसरे रोज़े की स्टेज के बाद, तो वो रोज़ा खा, तो उसने आधी रोटी खा ली या पौनी खा ली, उसे फिर याद आया मेरा तो रोज़ा था यार, मैंने तो रोज़ा रखा था, तो रोज़ा टूट गया, अब वो क्या करेगा? पहला। दूसरा इसका पहलू जो है वो ये है कि कैफियत ऐसी हो गई है कि वो अब कुछ खाएगा नहीं तो मरने की कैफियत आ रही है, यानी कि खशी की आ रही है, या उसको ढाल हो रहा है, या बेहोश होने का खतरा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, बुरा हाल वहाँ को हो रहा है उसका कि वो कुछ खाएगा तो बचता है, चाहे उसमें कोई मर्ज शामिल कर लें या उसको वैसे उसको कैफियत ऐसी हो गई है तो वो खा सकता है, रोज़ा तोड़ सकता है, इसमें कुछ हजूर अपना। 2 बातें आ गई। पहली बात, भूल के उसने खाना खा लिया, जी हजूर। उलमाए कराम लिखते हैं अगर आपके सामने कोई शख्स भूल के खाना खा ले उसको मत याद दिलाओ, उसे मत याद दिलाओ, सुभान अल्लाह, जब तक कि खुद न याद कर ले, ठीक है।
अच्छा उसको याद आ गया, याद आने के बाद जो लुकमा गले से गुजरेगा वो रोज़ा तोड़ेगा। अल्लाह अकबर। मुंह में लुकमा है, उसको याद आ गया, और अब ये लुकमा खा लिया तो रोज़ा गया, ये थूक दिया तो बच गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर याद आने से पहले तक जो गले से गुजर गया गुजर गया, अल्लाह माफ़ करने वाला है, किताबों में लिखा है अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया, ठीक है, उसका रोज़ा टूटा ही नहीं, काम खत्म। सलामत रहे। अब रह गया दूसरा बंदा जो बीमार है, महसूस कर रहा है मैं ये हो जाएगा मैं वो हो जाएगा, ये सारे शैतानी ख्यालात हैं। उलमाए कराम ने इसके ऊपर बहुत मुफस्सल लिखा हुआ है। वो हाज़क तबीब के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, अगर डॉक्टर भी उसको चेक करके कहे कि तुम इफ्तार कर लो तो इफ्तार कर सकता है डॉक्टर के कहने पे। 60 रोजे फिर नहीं पड़ेंगे, फिर 60 रोजे नहीं है, कज़ा है। खुद से इफ्तार कर लिया तो 60 रोजे पक्के। अल्लाह अकबर। खुद का फैसला काबिल कबूल नहीं है, इल्ला ये कि वो खुद डॉक्टर हो खुद डॉक्टर हो और वो समझता हो हाँ यार वाकई में पूरा यकीन, अपना इल्म जो कुछ उसके पास है उस सारे कुछ को देखने के बाद, गौर खोज करने के बाद वो डिसाइड करे कि या वाकई अब मेरी एंड हो चुकी है, तो पर्सनल चांस है। वरना वो बेस्ट ये है कि खुद डॉक्टर है तो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, यार ये मेरी कैफियत है मैं क्या करूँ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। जिम्मेदारी दूसरे की गल डाल दो, डॉक्टर अगर जिम्मेदारी उठा लें तो ठीक है। ऐसे ही एक्सीडेंट वाले लोग हैं, एक्सीडेंट हो गया रोज़े की हालत में, ठीक है जी, बस जी इसका एक्सीडेंट हो गया, खून निकल आया, अब तो रोज़ा टूट गया। खून निकले से रोज़ा नहीं टूटता, खलास। वजू टूटता है, उसकी कैफियत है कुछ ना? हाँ, मिकदार वजू के ऊपर तो है, रोज़े के ऊपर असर रोजे नहीं। के ऊपर असर नहीं। हाँ, डॉक्टर मुआलिज ये समझे कि खून इतना निकल गया, ये इतना बीमार हो चुका है, अब इसको रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, तो वो इफ्तार कर सकता है। हाँ, उसको ताकत की ड्रिप लगा दी, उसका रोज़ा चला गया। उसको ताकत का टीका लगा दिया तो उसका रोज़ा चला गया। उसको एटीएस का टीका लगा दिया, ये तो टेटनस का टीका है, उससे रोज़ा नहीं टूटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है। टीका वही है, हाँ, टेटनस वो के मुफ्त में टीके से लगता नहीं है लगा, और दूसरा नार में चलता है। नहीं, वो दूसरा मकसद बदल जी गया, जी, मकसद चेंज हो गया जी। मकसद चेंज हो गया। वो हिफाजत का था, ये उसको ताकत देने वाला है, ग़ज़ा का मुतबादल। जो ग़ज़ा का मुतबादल किया उसने फ़ौरन रोज़ा तोड़ दिया। और अगर उसकी मरीज़ की अपनी मर्ज़ी भी थी तो 60 रोज़े भी पड़ गए, अपनी मर्ज़ी नहीं थी, डॉक्टर साहब की मर्ज़ी थी तो क़ज़ा पड़ गई। हजूर यहाँ पर ना कुछ माजरत के साथ मैं ज़रूरी समझूंगा और आपकी शफकत और इतना प्यार है कि मैं इस वक्त इंडिपेंडेंट बैठा हूँ आज़ाद, कि मैं खुल के बात करता हूँ। कुछ लोगों का बाप है जेहन में है कि सवालात कैसर भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। मौलवी होने के नाते मेरा काम भी बनता है, इमाम होने के नाते, ताकि कुछ इल्म लेकर मैं आगे कन्वर्ट कर सकूँ। पहला मेरा मोटो ये है। और एक भाई काशिफ साहब पर भी बड़ा एक्शन आया कि ये सवाल बहुत करते हैं। नहीं वो तो भाई कुछ नहीं, मैंने कहा कि जितना सवाल करें करना उतना और सवाल का जवाब लेना, यही ऑनलाइन हमारा काम यही है और इसी का ही मकसद है तरबियती कोर्स। बिल्कुल। तो रह गई बात 5-10 मिनट ऊपर नीचे होने की, तो उसके लिए मैं पहले मदद करता हूँ और फिर मैं अपने किबला से भी मतलब की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से और पूरे समदानी बाबा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सवालात किया करें और सवालात का जवाब भी इंशाल्लाह मिलेगा आपको। अब जो सवाल हजूर मैं करना चाह रहा हूँ रोज़ों के मतलब ही, हजूर वाला अल्लाह पाक आपको सलामत रखे कि रोज़ा रखना है, और ये भी बड़ा अहम मसला है। अजान होने लगे, ये एक ना अथेंटिक चल रहा है मामला, बड़ा ही रोज़ा रखना है, अब उठ गए हैं, आटा गूंदा पड़ा है या गूंदने वाला है, जो भी कंडीशन है, तो अब घड़ी को देखा है तो रह गए 5 मिनट। पहली रोटी ऊपर डाली है, वो तैयार होने में 2 मिनट, वो लेके 3 मिनट रह गए, बाकी मामला तो आपके संभल मुख्तसर आगे आ गए। आपने पहला लुकमा डाला और उधर से टाइम ख़त्म। तो हजूर टाइम की लिमिट कितनी है? यहाँ पर रोज़ा वो ख़त्म कर देगा, सहरी ख़त्म कर देगा और दुआ कर लेगा, या इसके आगे कुछ टाइम उसके पास है, इजाज़त देती है शरीयत की, अजान सुन ले या सारी अजानों का आवाज़ आती रहे तो कर ले। यहाँ पर हजूर वाला तो रोशनी फरमा दें। कुछ लोग कहते हैं कि दिन थोड़ा निकले तो मोड़ो नहीं तो सहरी होती रहती है,
ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਾਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अधूरी बड़े अहम सवाल आते हैं जो मैं आपसे बिल्कुल वाकई ये अहम सवाल है और बड़ी इसको गलतुल आम फैला हुआ है ये। पुराने ज़माने में जब के अज़ान के वक़्त का मुकम्मल यकीन नहीं हुआ करता था, उस वक़्त ये गुंजाइश थी कि अज़ान के वक़्त के अंदर कुछ लुक़मे खाए जा सकते हैं। उलमाए कराम ने कहा है कि अगर आपने कुछ नहीं खाया हुआ है, बिल्कुल लेट पहुँचे हैं और आपने खाने का बर्तन आपके हाथ में है, हाथ वाला बर्तन, देगची नहीं कि भी देगची उठा लिया, हाथ वाली प्याली छोटी मोटी, उसके अंदर कोई चीज़ खाने की है और वो अज़ान के अंदर अंदर आप खा लें, तो पुराने ज़माने में इसकी गुंजाइश थी, इस वजह से कि उस वक़्त इल्मुल तौक़ीत के हिसाब से हर बंदा उतना नॉलेज नहीं रखता था। हालांकि इल्मुल तौक़ीत पुराना है, लेकिन हर इमाम मस्जिद अज़ान देने वाला हर शख्स पूरा नॉलेज नहीं रखता था, इसलिए उसकी अज़ान में 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे का चांस था। लेकिन फिर जब वक़्त गुज़रते हुए पिछले 100-200 साल समेत इल्मुल तौक़ीत घड़ियों की सूरत में सामने आ गया, ठीक है, और पूरे मिनट और सेकंड निकाल लिए गए। और अब तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर बाकायदा सायरन मौजूद है। इंडिया में शायद कहीं है कहीं नहीं है, पाकिस्तान तो तकरीबन पूरे में ही सायरन मौजूद हैं। ठीक वक़्त के ऊपर सायरन बजा दिया जाता है। जी हजूर ऐसे ही है। तो अब वो कानून, वो चूँकि कोई शरीयत में हदीस में तो नहीं लिखा हुआ था, उलमाए कराम ने एहतियात के बुनियाद पर कहा था कि हाँ, एहतियात की बुनियाद पे ये इतनी की गुंजाइश है कि हाथ वाला प्याला अज़ान के अंदर अंदर फटाफट करके निपटा लो। लेकिन चूँकि अब वक़्त वाज़े है, अब वक़्त का शक निकल गया, पॉइंट समझना है। वो गुंजाइश क्यों थी? क्योंकि वक़्त का शक था। पॉइंट समझ आया? मैं समझ पहले क्या क्यों गुंजाइश थी? वक़्त का शक था। शक था, अब वक़्त का शक खत्म हो गया। सायरन बजा, इसके बाद जितना खाया रोज़ा टूट गया। सायरन बजने के बाद जो बंदा अज़ान के दौरान खाना खा रहा है, उसका कोई रोज़ा नहीं है, उसका फाका है। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर। आगे बात बता सकते हैं? उसका फाका है, क्लियर कट। गलती से भी मत खाए, क्योंकि अब हाम नहीं रहा। वक़्त का तयन मुकम्मल वाज़े तौर पर मौजूद है। सेकंडों से भी, सेकंड के 10वें हिस्से तक का भी आपको पता है। जी जी हजूर। काशिफ साहब आपके बाद मेरे बात क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। एक दोस्त है, सवाल करता है, कैसर भाई 8 पैरा रोज़ा रखना आदत बना ली जाए, क्या जायज़ है? यानी एक बंदे की रूटीन है, समझ गया। लेट उसने खाना खाया है, वो कहता है यार सैरी मेरे को नहीं होनी, मैं सैरी करनी को नहीं, मेरे अगे रही हजम नहीं होया, तो वो 8 पैरे का आदी बन चुका है, वो मुसलसल 8 पैरे रोज़ा रखता है, पानी पीता है उठ के और नीयत कर लेता है। तो ये इस्लाम में क्या तक इजाज़त? रोज़ा हो गया मकरूह है, अल्लाह अकबर। सवाब वाले के मसले में गड़बड़ है। फ़र्ज़ अदा हो गया लेकिन मकरूह है, क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़ा था। नफल रोज़ा रखेगा तो होगा ही नहीं। सुन्नत रोज़ा, नफल रोज़ा, मुस्तहब रोज़ा, नज़र का रोज़ा, वाजिब रोज़ा, कितनी किस्में हमने आज पढ़ी, क्या बात, ठीक है नहीं? 6 किस्में थी ना टोटल। 6 में से एक मकरूह को साइड पे कर दें, एक फ़र्ज़ को साइड पे कर दें, बाकी 4 किस्में वाजिब, मुस्तहब, सुन्नत और नज़र वाला, ये 4 होंगे ही नहीं। ये रोज़े 4 होंगे ही नहीं, इनके लिए तो सहरी फ़र्ज़ है। फर्ज है। हाँ, जो फ़र्ज़ रोज़ा है वो चूँकि हुक्मन फ़र्ज़ है, लिहाजा अगर मजबूरन किसी वजह से कोई शख्स मजबूरन गलती से
8 पैरा रोज़ा उसका बन गया, वो सुबह उठा ही, जैसे पहले बात हुई, जी हजूर जी। अजान से 1 मिनट पहले उठा हाँ टाइम नहीं बता। या अजान सुनने पर ही उठा, हाँ जी अब उसने वो 8 पैरा रोज़ा रख लिया, उसका रोज़ा हो गया। लेकिन अगर उसने आदत बनाई तो फिर उसका रोज़ा मकरूह है। जी। रोज़ा हो गया लेकिन मकरूह है। आखिरी सवाल, और इस सवाल के साथ मैं काशिफ को टाइम दूंगा। औरत ने सहरी करवानी है और वो बेचारी बना रही है, वो बनाते बनाते रोजा सहरी खत्म हो गई, वो औरत अब खा नहीं सकती क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया है, तो वो रोजा छोड़ सकती है? फ़र्ज रोज़ा नहीं छोड़ सकती। और शायद आपके ज़हन में हो, अक्सर ख़वातीन ये काम भी सीख जाती हैं कि जब रोज़ों के अंदर वो पकाते पकाते खा भी लेती हैं, हाँ जी ऐसा हुआ है। पकाते पकाते खा भी लेती हैं, और यही सही तरीका है। यही सही तरीका है। शहरी में जब ज़्यादा फैमिली है, खातून एक है या दो हैं और उनके पास शहरी का टाइम नहीं बचना, उनको पक्का पता है, उनके लिए यही तजवीज़ होती है कि वो अपनी रोटी सबसे पहले पकाएं और उसको साइड पे रखें और तोड़ के खाती भी जाएं, काम भी करती जाएं, और शहरी और दोनों काम मिक्स कर लें। और ऐसा आम है, ऐसा नहीं है कि ये भी नायाब चीज़ है, आम ख़वातीन ऐसा करती हैं। ठीक है, यही एहसन तरीका। आखिरी इसका आखिरी पहलू, खुशबू दुराने रोज़ा, खुशबू फूल की है, चाहे ये इत्र की है या इसके अलावा जो भी खुशबू है, उसको ऐसे करके सूंघ लेने से रोज़े पर क्या असर पड़ता है, ये कोई है इस पर असर? खुशबू का मैंने कोई असर नहीं। जी बिस्मिल्लाह। खुशबू का जायका आ जाए फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ स्पेशल सूंघे तो कुछ न कुछ वही बात कि उसने इरादे से बाहर से कुछ अंदर लिया, फिर मकरूह हो जाता है। जी जी। ठीक है, लेकिन खुशबू आज खुद रोज़े के ऊपर काते रोज़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आज किस्म हवा है, आज किस्म हवा, और हवा का दखूल खरूज रोज़े के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। वो काते रोज़ा नहीं है। हाँ जानबूझ के कोई खुशबू ली, जैसे हुक्के की खुशबू, धुआं, जी जी। तो ये जानबूझ के सूंघी हुई खुशबू उसी हुक्म में चली जाएगी और फिर वो मकरूह है। और अगर कुछ उसका जायका ज़ुबान पर आ गया तो फिर तो वो गई इजाज़त के ये तो तो बड़ा तुझे क्यों जासू होना? बाद क्यों? कारी साहब ने सवाल पूछा था, रोज़ा रखा, रात को नीयत की, सुबह लेट उठा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि रात को नीयत की, सुबह अजान भी होगी, उसके बाद में जाग आई, फ़र्ज रोज़ा है, उसका रोज़ा हो जाएगा? हाँ वो अभी बात हुई ना, उसका 8 पैरा रोज़ा हो गया। क्योंकि उस नियत नहीं जहाँ अगर हर रोज़ करता है तो फिर मकरूह है, एक दिन हो गया गलती से तो कोई हर्ज नहीं। ये क्लास वाला है कि एक बंदा सेहतमंद है, रोज़ा रख सकता है, लेकिन उसका काम काज है, उसके मुआशी हैं, काम करेगा तो वो उसका रोज़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उसका वो कफ़ारा क्या अदा करे? वो नहीं रख सकता, रोज़ों के रमज़ान के बाद में भी वो नहीं रख सकता, क्योंकि उसके पास मुआशी है, काम है उसका, तो वो कोई गुंजाइश नहीं, मेरे मालूमात में कोई गुंजाइश नहीं। मेरी मालूमात यही है कि उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अगर हम दौरे सहाबा को देखते हैं तो सहाबा कराम मवेशी चराने से, खेतों में काम करने से ज़्यादा मुश्किल काम जंगो जिदाल रोज़े से करते थे। अल्लाह। अगर तलवार उठा के जंगो जिदाल रोज़े से हो सकता है तो मवेशियों का काम भी रोज़े के साथ हो सकता है। ये सिर्फ शैतान का ख्याल है, कोई गुंजाइश नहीं। मेरी मालूमात यही है, हो सकता है किसी ने कोई लिखा लेकिन हो। हमारे पास उधर जो ड्यूटी करते हैं ऐसे कोई लोग है ना, इफ्तार भाई, जो पायलट होते हैं, हाँ रोज़ा नहीं रखते, इनका गवर्नमेंट देती है ना कफ़ारा, कुछ पे करते हैं। लेकिन पायलट वाली बात वही फिर अलग बात आ गई कि वो जंगी शख्स है, ठीक है,
हजूर उस में ना ऑक्सीजन होता है, अगर वो रोज़ा रखे भी तो ऑक्सीजन जैसे आप फरमा रहे हैं वो अंदर जाती है। वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है, मकसद है वो केस बदल गया ना उसका। जिस दिन तो उसने फ्लाइंग करनी है उस दिन का उसको रोज़े का कफारा नहीं होता, बदल होता है जी कि वो बाद में नहीं बदल होता है। एक ऐसा शख्स जो मरीज़ है जिसके रोज़ा रखने में बहुत मसाइल हैं, ठीक है, परमानेंट मरीज़ हो गया, या जैसे आप बता रहे हैं पायलट है उसको तो परमानेंट मजबूरी है ना, जिस दिन उसकी फ्लाइंग नहीं है उस दिन उसको रोज़ा रखना चाहिए। जिस दिन उसकी फ्लाइंग है, ठीक है, ऊपर से कोई भी साइन आया हुआ है कि जी इमरजेंसी है वगैरह वगैरह कुछ भी, उसको पता है कि मैं किसी भी दिन किसी भी मिनट में अगले 5 मिनट में मैं जहाज़ में होऊंगा, उसको कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। दूसरे मतलब में उसको ये कंफर्म है कि मैं ऑन ड्यूटी ऑन फ्लाइंग ही हूँ, ठीक है, वो अपने रोज़े का बदल करेगा। बदल कैसे होता है? किसी ऐसे गरीब शख्स को जो अपने पैसों से बाआसानी रोज़ा नहीं रख सकता, गरीब आदमी है, उसको रोज़ा रखवाए और इफ्तार भी कराए। और इसके लिए ऐसा दायमी मरीज़ जिसमें आजकल के ज़माने में 2-3 मरीज़ दायमी बन सकते हैं, मसलन टीबी के कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुगर के मरीज़ कुछ ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ब्लड प्रेशर और दिल के कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उनके लिए भी कानून वही है कि उन्होंने खुद फैसला नहीं करना, वो अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से लिखवाएंगे, ठीक है। डॉक्टर उनको अपने पैड पे लिख के दे दे, वो पैड का लिखा हुआ कहीं जाना नहीं है, लेकिन वो लिखने से डॉक्टर के दिल में यकीन आ जाएगा कि मैं वाकई लिख रहा हूँ और मैं लिख के दे रहा हूँ, सही बात है तभी लिख रहा ना। और लिख जिसके पास कागज़ क्या उसके पास सबूत आ गया, और ये 2 लोगों ने नोट कर लिया कि भाई डॉक्टर ने जिम्मेदारी उठाई है, ठीक हो गया। अब वो अपने हिस्से के रोज़े रखवाएगा, आपने सुना होगा ना रोज़े रखवाना। अच्छा, इस रोज़े रखवाने को बदल भी कहते हैं, और इसका सही तरकीब ये है कि वो अपने घर के खाने से रोज़ा रखवाए। जो खाना उसने खुद खाना था या जो खाना वो खुद खा रहा है, जिससे उसके भाई बीवी बच्चे उसके फैमिली मेम्बर जो खाना खा रहे हैं वही खाने से उसको रोज़ा रखवाए, ये सबसे बेस्ट है। नहीं है ऑप्शन, इम्कान नहीं है, दिक्कतें हैं, फासला है, खातून है और दीगर मामलात हैं, तो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक, अगले बंदे की हैसियत के मुताबिक नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा राशन लेकर दे दें या पैसे दे दें कि भाई तुम मेरे हिस्से के रोज़े रख रहे हो, मैं मेरी फ़लाँ जेन्युइन मजबूरी है, जिस जेन्युइन मजबूरी की वजह से मैं खुद रोज़ा नहीं रख सकता। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पायलट को तो ऑक्सीजन लेवल ही ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने कुछ खाया हुआ होता है, उसके पेट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जा रही होती है, उसका तो सिस्टम ही रोज़ा ही नहीं रहना। दूसरा, उसको सफ़र के दौरान फ्लाइट के दौरान उल्टा पुल्टा कुछ भी होना है तो, और उसकी सेंस जो है ना वो अगर इतनी सी भी हिली तो वो तो मुल्क का भी नुकसान, जान का भी नुकसान। तो ऐसा शख्स के लिए गुंजाइश है कि वो अपना रोज़ा बदल कर देगा अपनी जिम्मेदारी पर, किसी महल्लेदार, किसी अजीज़ रिश्तेदार, किसी बहन भाई, ऐसे बंदे को जो रोज़ा नहीं रख सकता नॉर्मली, उसके पास माली हालात ख़राब है। ये नहीं है कि भाई 2 भाई एक ही जैसे हैं और दूसरे भाई को कह दे चल तू रख ले यार। हाँ, गरीब भाई है तो रखे, गरीब भाई नहीं है एक ही जैसे हैं, फिर उसका रखा हुआ बदल नहीं है। उलमा ने उसको बदल नहीं समझा, कहते हैं गरीब आदमी को जाकर खिलाओ पिलाओ, उसको रखो। हजूर रोज़ा रखना है और ट्रैवलिंग जा रही है, सफ़र है, सहरी का वक्त और सफ़र में जा रहा है और उसके पास अवेलेबल कुछ नहीं है और उस गाड़ी में भी सहूलत मौजूद नहीं है और इलाका ऐसा वीरान है कि जहाँ आसपास कुछ खाने को नहीं है और सहरी भी जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यानी कि टाइम बड़ा ख़त्म हो रहा है, सहरी भी करनी है, रोज़ा भी रखना है, यहाँ पर फिर वो आपने फरमाना है
اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سحری کے بعد افطاری کا معاملہ ہے. افطاری کرنی ہے لیکن سفر میں ہے اور آس پاس کوئی چیز مل نہیں رہی کھانے کو, ساتھ جگہ پہ بھول گیا ہے, تو اس نے افطاری کرنی ہے اور ٹائم بھی ہو گیا اور حالوں کی بات سمجھ ہو گئی, یہ ٹائم ہو گیا, شام کو پتہ لگ ہی جاتا ہے بندے کو یہ ٹائم ہے افطاری کا ہو گیا. تو وہ افطاری کھائے گا کیا, اس وقت اس کے پاس اویلیبل کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑے سفر پر جا کر اس کو مثال پر آدھا پونا گھنٹہ اوپر ہو گیا یا 15-20 منٹ اوپر ہو گئے ہیں افطاری ہوئے بھی, وہ پانی کہاں جا ملتا ہے, اس کو جا کر پانی پیتا ہو, اس کو وہ جو ٹائم اس میں مان گیا 15-20 منٹ کا, اس میں کیا گنجائش ہے, کیا اس کو کوئی گناہ یا معاملہ نہیں کے معاملے میں تو نہیں آئے گا. یہ بڑا جو قیمتی افطاری والے جواب پہلے دے لیتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاس رکنے کا آپشن نہیں ہے, وہ بس میں ہے, ٹرین میں ہے, جہاز میں ہے, ڈرائیور وہ نہیں ہے, روک نہیں سکتا. روک نہیں سکتا. اگر روک بھی سکتا ہے تو ارد گرد میں کوئی چیز موجود نہیں ہے, لہذا اس کے پاس اختیار نہیں ہے. جب موقع ملے پہلی فرصت میں افطار کرے گا, پہلی فرصت میں افطار کرے. جب موقع ملے. جی جی. وہ 15 منٹ گزر گیا, 20 منٹ گزر گیا, اللہ معاف کرنے والا ہے, اس کے دل کے اندر افسوس چل رہا ہے نا. بہت اہم بات ہوئی, بہت اہم. لیکن جو پہلی بات آپ نے کہی ہے, مسافر ہے اور سحری کا ٹائم ہو گیا, جی جی. تو پہلے ہم نے یہ آج کے موضوع میں پڑھا ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے, ان کنتم مرداء علی سفر فعدۃ ایام اخر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مریض ہو یا مسافر ہو تو بعد میں گن لو. بعد میں گن لو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا بعد میں گن سکتے ہو, یہ نہیں فرمایا, یہ فرمایا بعد میں گن لو. پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. اسی وجہ سے شیعہ مسلک کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں مسافر کا روزہ ہوتا ہی نہیں. میں یہاں مسلک کے بارے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر صرف لفظوں کو گنتی کریں تو قرآن کہہ رہا ہے مسافر کا روزہ ہی نہیں ہے. فاقہ کاٹنا کاٹ لو, سحری تو دوسروں کی ہے, مسافر کی تو ہے ہی نہیں. کیا بات ہے, اس کو کیا ٹینشن ہے؟ یار کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. ہاں, اہل سنت نے کہا ہے کہ جب سفر آسان ہو اور ہمت ہو تو قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے, وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے اچھا ہے. کیا بات. دوسری باری کیا ہے, اگر گنجائش. ان تسوم, اگر رکھو تو, نہ رکھو تو ٹھیک ہے, اگر رکھو تو اچھا ہے. کیا بات. آپشن, بات کو سمجھنا ہے. لہٰذا اہل سنت کے مطابق اگر اس کے پاس گنجائش ہے, سحری کی, معاملات کی سہولیات ہیں, رکھے, اور اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بالکل بھی روزہ مت رکھے. جی کیا بات, کیا بات. ٹینشن ہے ہی نہیں ہے. نہیں رکھنا چاہتا ہے, نیت کر لے بغیر سحری کے تو روزہ تو ہو جائے گا. اگر ہمت ہے, اگر ہمت ہے تو ٹھیک ہے. حضور آخری, اگر ہمت نہیں ہے, محسوس ہوتا ہے سفر لمبا ہے, تو پھر ایک اور دوست ہے وہ کہتا ہے ایسے ہی موضوع پہ نا, اب یہاں مسلک کی بات کو ہٹ کے دوست نے کہا کہ جناب عجیب بات ہے, یعنی بات دو الگ الگ لوگوں میں ہو رہی تھی اسی روزے کے اوپر. ایک بندہ کہتا ہے میں مسافر ہوں لیکن میں نے روزہ رکھنا ہے, دوسرا بندہ کہتا ہے یار اللہ نے فرمایا ہے کہ اجازت دی ہے, گنجائش دی ہے, مسافر میں روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لے, تم کہتے ہو میں نے لازمی رکھنا ہے. تو اس نے کہا, اس نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اللہ فرماتا ہے میں تمہیں رعایت دیتا ہوں, تو کہتا میں نے تو نہیں رہنی رعایت, مجھے تو رعایت چاہیے ہی نہیں. تو بڑا چوڑا بھی, اللہ تمہیں رعایت دے رہا ہے اور تم کہتے میں رعایت نہیں لیتا. ذرا اس بات کا مطلب تو سوچو. اللہ آپ کو رعایت دے رہا ہے, آپ کہتے میں رعایت نہیں لیتا, کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر واقعی آسان ہے, بہترین ہے, مناسب ہے تو رکھے, اگر آسان نہیں ہے تو بالکل مت رکھے. ہاں اس میں پھر یہی پوائنٹ آ گیا, ایک بندہ یہاں سے چلا, اب اپنی مثال لے لیتے ہیں, ہم دیپالپور سے چلے یہاں آ گئے, ابھی ہم مسافر ہیں, لیکن ہم ہر روز کہیں سفر تو نہیں نہ کر رہے,
یہ والا مسافر اگر روزہ رکھے تو اس کے لیے اچھا ہے، لیکن وہ مسافر جس نے سفر کرنا ہے، جو سفر کر رہا ہے، وہ روزہ نہ رکھے تو اچھا ہے، کیونکہ دوران سفر اس کو کچھ بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ جو ہے تو مسافر لیکن کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ روزہ رکھے تو اچھا ہے۔ یہ سب جیسے ڈرائیور ہیں، یہ تو ڈیلی جاتے ہیں گاڑیوں پہ، ان کی چھٹی نہیں ہوتی، چھٹی کرنی ہے تو بچوں کا گھر کیسے چلائیں گے؟ تو وہی نماز والا قانون لگے گا کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا، پرماننٹ ڈرائیور، یہ ان کی نماز قصر نہیں ہوتی، دوسرے مسافروں کی نماز قصر ہوتی ہے۔ جس کا پیشہ ہی سفر ہے اس کے لیے قصر نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس کا روزہ بھی قصر نہیں ہوتا، وہ روزہ رکھے گا۔ اور وہ چونکہ بااختیار ہے، ڈرائیور خود ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے ٹائمنگ کو بھی ایڈجسٹ کرے گا، اپنے سفر کو بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ مطلب قضا نہیں کر سکتا، وہ تو قضا نہیں نہ کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں، جہاں رکنا ہے جہاں نہیں رکنا، دھوپ میں رکنا ہے چھاؤں میں رکنا ہے، گرمی میں سفر کرنا ہے سردی میں سفر کرنا ہے، سحری کے ٹائم کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، ہر ایک چیز کو ان کو مینج کرنا بڑے آتے ہیں، نیتوں سے ہی ان کی مینج کرنے کی ان کے پاس بڑے راستے ہیں۔ حضور بہترین افطاری آگے آپ کے پڑی ہے، شریعت میں یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق سب سے بہترین کون سا لقمہ ہے جس سے افطار کیا جائے اور اس کے ثواب ہمیں ملے؟ کھانے میں سے سب سے سستی چیز کے ساتھ، اللہ اکبر، نمک کے ساتھ، نمک کی پھر سب سے نہیں انڈیا چلے جاؤ، نمک مہنگی چیز ہے، نمک 250 روپے کلو واقعی سے کھانے کے افطاری میں جو سنت مجھے سمجھ میں آئی ہے، میں نے اس کے اوپر بڑا غور و خوض کیا الحمدللہ، اور پچھلے بھی بڑے بڑے بزرگ لکھ کے گئے ہیں، علماء کرام لکھ کے گئے ہیں، سنت کھجور سے افطاری نہیں ہے، پوری تصدیق کے ساتھ میں کہہ رہا اللہ ہوں، اکبر، کھجور سے افطاری کرنا سنت نہیں ہے، سب سے سستی چیز سے افطاری کرنا سنت ہے۔ سب سے سستی جو جو مطلب عام اوور آل مل جائے، سستی ہو حضور، جو عام مل جائے، جو اس وقت اس وقت سب سے سستی چیز ہو۔ ہاں عرب شریف میں کھجور سب سے سستی ہے، اس لیے سرکار سب سے سستی چیز سے افطاری کرتے تھے، سبحان اللہ، اور کبھی کبھی کھجور کے علاوہ نمک سے بھی افطاری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھی افطاری کی، کیونکہ دسترخوان پر موجود سب سے سستی چیز پانی تھا، دسترخوان پر موجود سب سے سستی چیز نمک تھا، سب سے سستی چیز کے ساتھ سنت افطاری کرنا یہ سنت ہے۔ جی میرا اگلا سوال ہے کہ قضا نمازیں ہیں، بندہ ترتیب سے پڑھ رہا ہے، صاحب ترتیب ہو گیا، اس کی پچھلی نمازیں اس نے قضا ادا کرنی ہے، شاہ جی مطلب اگر کوئی ساڈے تو ہن یہی ہے نا اگر کوئی کہ بندہ بھئی سنت رسول ہے، کھجور پہلے تناول کھاؤ پھر پانی پیو، اگر روزہ کوئی افطار کرنا پہلے اگر کوئی کھجور کھاؤ پھر پانی، لڑکا ہے تو کیوں جی ایویں ہی ہے نا، 15 سال سے وہ اسی اپنی میں سے نمازیں بات شروع کرے گا، جب سے پہلے اس کی کھجور کھانی ہے، پھر بالغ پانی 15 سال سے ہے آج کل جو شرعی لحاظ سے، سب تو جیسے- پہلے پانی پی لو تو بہتر نہیں، یہی ہے نا ہاں جی، سب تو پہلے نہیں 15 سال نہیں ہے، جی ادھر انہوں سوال چل رہا ہے، 15 سال نہیں ہے، تھوڑا آگے سال آ تو جاؤ، سمجھ آگے لیں، آ جاؤ، بالغ 15 سال کا بالغ ہو جاتا تھوڑا ہے جا آگے آ جاؤ، جی، پوائنٹ کو ذہن نشین کر لیں، کھول کے بات کر دیتے ہیں۔ قاری صاحب تھوڑا حجاب میں تھے، چونکہ وہ ان کا اپنا مزاج ہے، ہم حکیم ٹائپ لوگ ہیں، تھوڑا حجاب اس موضوع پہ کم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت ہے، اس کو پیریڈ آ گئے، پہلا پیریڈ آتے ہی جس دن اس کو پیریڈ شروع ہو گیا وہ بالغ ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر، مرد ہے، اس کو جس دن پہلا احترام ہوا وہ بالغ ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ شاہ صاحب پہلا اس کو یاد ہی احترام نہیں اس کو ہے۔ 12 سال کی عمر میں ہو گیا، جی اس کو 15 سال کی عمر میں ہو گیا، اس کو 17 سال کی عمر میں ہو گیا، اور وہ جس دن اس کو پہلا احترام ہوا بالغ ہے۔ ہاں مرد کے لیے انہوں نے عرفی طور پر یہ رکھا ہے کہ اب 15 سال عمر اس کی ہو گئی تو اب وہ حکماً بالغ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جسمانی اعضاء بالغوں جیسے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو 12 سال کی عمر میں احتلام ہو گیا تو بالغ، 13 میں ہو گیا، 12.5 میں ہو گیا، 13.25 میں ہو گیا، جب جس دن پہلا احتلام ہو گیا
वो बालग है। लड़की 13 साल की उम्र में 12 से 13 के दरमियान उसके जिस्मानी अज़ा बालगों जैसे हो जाते हैं, ठीक है, उर्फी तौर पर। लिहाजा उसकी उम्र 13 साल हो गई, पीरियड नहीं आए, वो हुक्मन बालग हो गई, वो हुक्मन बालग हो गई। लेकिन सही बालग वो तब है जिस दिन उसको पहला पीरियड आ गया। वो 11 साल की उम्र में आ जाए, 12 में आ जाए, 13 में आ जाए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लड़के और लड़कियां सब कुछ देख तूक के 13 और 12 15 तो रह गए, 11-12 में लोग बालग हो रहे हैं। इसके शाह साहब मेरा पॉइंट ये है कि वो बंदे की उम्र है जी 30-35 साल, ठीक है, उसको याद ही नहीं है मैं किन डेटों में या किन किन सन में बालिग हुआ था, तो अब उसने कज़ा नमाज़ें पढ़नी है अपनी। तो वो उर्फी तौर पर अपना मिजाज के मुताबिक, किताब में लिखा है, ये इस सवाल का जवाब किताबों में लिखा है कि वो अपने आप को तसल्ली से बैठ के याद करेगा, ठीक है। और एक लफ्ज़ लिखा हुआ है बिना करेगा, क्या कहते हैं, बिना करेगा, बे नून अलिफ हमज़ा, बिना। बिना का मतलब होता है पक्का यकीन लेकर आने की कोशिश कि यही होगा, इससे पहले तो फलां वजह थी तो नहीं था, इसके बाद फलां बातें याद आ गई, वो तो पक्का ही था, इसका मतलब है यही था। इस जो मैंने स्टाइल बना के दिखाया, इस काम को करने को बिना करना कहते हैं। ये बिना जो है ना शरीयत का बड़ा पॉइंट है। सोच विचार नमाज के अंदर भी कई बार बिना करना पड़ता है। जब आपको रकतें भूल जाएं तो बिना करते हैं, रोज़े में बिना करते हैं, और कई मामलात में बिना जो है ना वो आपको इधर और इधर का फैसला करता है, ठीक अच्छा, है। बिना पे भी उसको अभी तसल्ली नहीं हो रही, तो वो अपनी कितनी उम्र से नहीं, बिना ही तो उम्र को वाज़ेह कर देगा, उसी को बिना कहते हैं। मसाल के तौर पे उसने सोचा कि जी मैं जब मैट्रिक में था ना तो मेरी उम्र थी 15 साल, जब मैं 9वीं में था ना तो फलाना मौका था तो मुझे इतना हुआ था, या मैंने प्रैक्टिस हाँ की उसको थी, याद आ गई। थोड़ा थोड़ा उसको सीन में आ रहा है, साल के लिहाज से ना, क्लास के लिहाज से। फलाने लड़के को मैं मिसाल दे रहा हूँ ना कि भाई फलाने लड़के को मैंने देखा था, उसने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ऐसे वो अपने दिमाग में उसने तसल्ली से सोचा। अब उसको सोच सोच के तो याद आई, ये नहीं आ रहा कि यार 9वीं में था कि 10वीं में था, 8वीं में था कि 7वीं में था। तो बालग होने के लिए वो 1 साल पीछे वाले को फैसला करेगा। मिसाल के तौर पे उसको शक है कि 13 में था या 14 में, तो वो 13 को काउंट करे। उसको ये शक है 13 साल और 6 महीने थे कि 5 महीने थे, 5 मिनट तो वो 5 को काउंट करेगा भाई, जहाँ पे शक कंफर्म हो गया। अब कोई ना कोई फिगर उसके दिमाग में आएगा ही आएगा, ये तो नहीं हो सकता कि उसके दिमाग में कोई फिगर ना आए, भले वो 15 साल का ही आएगा। जिस साल का भी उसके दिमाग में फिगर आएगा, उस साल में अगर उसको कंफर्म है 13 साल 6 महीने पक्का, तो बस डन। अगर 13 साल 6 महीने और 13 साल 5 महीने में शक है, तो फिर 5 महीने तो पक्का है ना, 6वां ही शक है ना, 6वें को छोड़ दो, 5 महीने पे आ जाओ, वहीं से गिनती शुरू कर दो। ठीक है। यहाँ पे उसकी फजर की नमाज है, वो ज़्यादातर पढ़ लेता था, समझ ले, फजर की नमाज घर वाले उठा देते हैं, फजर बंदा पढ़ लेता है। उसका भी बिना करेगा कि अंदाज़न मेरी कितनी कज़ा हुई होंगी। उसने गैस लगाया 365 नमाजें थीं, जिनमें से एवरेज ये है कि मैं हफ्ते में 1 नमाज मेरी छूटती है, तो 54 हफ्ते हुए, 54 निकाल ली, 1-2 एक्स्ट्रा करके चलो 60 कज़ा कर दी। ठीक हो गया। अभी अभी इसको कहते हैं उसकी बिना कज़ा सारी होगी, मतलब फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा सारी कज़ा हुई, लिख ली। वो पहले फजर की सारी पढ़ेगा, नहीं, ये कोई शर्त नहीं, जौन से भी पढ़ ले, यहाँ टाइम नीयत शर्त है। मैं फ़लाने दिन फ़लानी तारीख वाली पढ़ रहा हूँ, या ज़रूर खुशामदीद, या जैसे वो ऐप है, या एक कागज़ के ऊपर उसने लिख लिया, ठीक है, 55 नमाजें मेरी फ़र्ज़ किया, फजर की 40 ज़ोहर की
اور جناب علی 10 عصر کی اور 5 مغرب کی اور 40 عشاء کی یہ ہیں. اب اس کے پاس ٹائم ہے 2 رکعتوں کا، روٹین میں 2 رکعتوں کا ٹائم ہے. اس نے کہا میں نے 1 فجر قضا پڑھ لی اور 55 کو 54 کر دیا. اس کے پاس ٹائم تھا 4 رکعتوں کا، اس نے نیتاً پڑھی 1 عشاء والی پڑھ لی. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس قضا میں ترتیب ہو، لیکن اس کے پاس اپنے فرصت کے لمحات کے لحاظ سے جو نماز پہلے نکل سکتی ہے اس کو کر لے. وہ صاحب ترتیب اب ہو گیا، ہاں. اس کی نمازیں ابھی قضا رہتی ہیں. ہاں، عصر کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے، نہیں. عصر کی نماز کے بعد فجر اور عصر کی فرضوں کے بعد نماز مکروہ ہے مطلب ابھی سوائے جنازے کے. ٹھیک ہے. جنازہ، نماز استسقاء، ہاں جی. ان اور 1-2 اور ہیں جن کی بغیر جن کی گنجائش ہے، اور باقی سب نمازیں جو ہے نا آپ پہلے پوچھ رہے ہیں، پھر میں وہ آپ پہلے پوچھ رہے ہیں. مجھے بیٹا حضور صاحب آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ اتنے دکر اس کو نہ روکے جب آپ کو بھی نہ پتہ ہو کوئی آپ کے وہ کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، اس کا روزہ ہے، اس کو مت روکے جتنے دکر آپ کو یاد نہ آئے، اس کو یاد نہ آئے. اس کو خود یاد ہے. اس کو خود نہ یاد آئے. اب میرا روزہ ہے، مجھے یاد نہیں، میں کھانا کھا رہا ہوں. ہاں، اب میں نے ایک بھونگا لیا روٹی کا اور دانتوں کے ساتھ میں نے چبایا، اور جب وہ یہ تالو ہوتا ہے اس کے سینٹر میں جب جا کے تالو کے لگا، جب وہ 1.5 چینے سے بھی زیادہ جب وہ جائے تو اس کو یاد آ جائے او یار میرا تو روزہ تھا. وہ جب ادھر روٹی ہوتی ہے جو اس کے 1.5 چینے جتنا پیٹ میں اسی وقت ہی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا کہ نہیں؟ بقایا کو باہر نکال دے تو روزہ بچ گیا. جو چلا گیا وہ چلا گیا. جو چلا گیا اس کو چھوڑ دے، جو بقایا منہ کے اندر ہے اس کو باہر نکال دے تو روزہ بچ گیا. بقایا کو کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. جو چلا گیا وہ حضور چھوڑ. امام ہونے کے ناطے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. ابھی پہلے آپ نے حوالہ دیا حیض یعنی عورت کو تاریخ ہے، ڈیٹ ہے، وہ سحری بنا سکتی ہے اور خود بھی کھا سکتی ہے. پہلا. دوسرا تو کچھ اب آپ ایسے ہیں، میں جب گاؤں میں امامت کرواتا تھا نا، گاؤں کی مسجد میں امامت کرتا تھا جی اندراکھا میں، تو وہاں پر ایک بزرگ نے سگریٹ پیا اور روزہ تھا. میں نے اسے بابا جی دوستوں میں کہا ضرور سگریٹ کیوں پیتے پہ روزہ کیوں نہیں رکھا جی؟ آندا ساڈا روزہ کوئی تھوڑے مولیاں مر گئے. میں کہا وہ اس کا روزہ نہیں میں کہا ہوتا نا، ضرور وہ بس اس نے چلو ایسی غلطی کار بیٹھے رکھ بیٹھے تو سب رکھا ہے. مجھے پتا ہے کہ روزہ رکھا تھا کیا روزہ میں رکھا ہے ترکڑا روزہ رکھا ہے. وہ میں جھٹکا سیا میں کہا حضور تو سگریٹ بھی پیتے پہ. انہیں کہا سگریٹ نال بھی روزہ بڑا ٹوٹتا ہے. آ دھویں نال مولوی صاحب روزہ نہیں ٹوٹتا. میں کہنا کوئی کھانا پیا وا حضور اس کے مطلب غیر اختیاری دھویں سے نہیں ٹوٹتا، اختیاری دھویں سے ٹوٹتا ہے. ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، دوسرے کو مفت میں دھواں چلا گیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. جو پی رہا ہے وہ ارادے سے پی رہا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اختیاری دھواں غیر اختیاری دھواں. مطلب میں پیر سرکار گنا 10 پیر میرے کھا لگے جو سگریٹ پیتے ہیں روزہ بھائی رکھ ان کے. کو روزہ ہوتا ہی نہیں. اور ساری ہمارے ساتھ سرکار میرا تو سوال ہے، سحری کرنے سے روزہ کب ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے سحری کرنے سے روزہ ہوتا ہے؟ اچھا نیت پر ڈیپینڈ ہے. بھائی نیت نہیں ہے تو روزہ ختم. آپ 2 گھنٹے ہم نے تقریر اسی بات پہ تو کی ہے. نہیں اور ساتھ مطلب کہنا مطلب نہیں دعا سحری کر لی. پیر کی نگرانی سے سحری کر رہے ہیں. ٹھیک ہو اس نے سارے نال سحری بھی کی ہے. ایسے نال کھانے کے طور پر رات ٹھہرے سی بہت اچھا صبح سحری کی تھی، وہ سحری دعا بھی کی تھی. ہم نے نیت کی اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت. اس کے علاوہ بھی سوامی قدیم نہ وہی تمہیں شاہی رمضان کی دعا ہو گئی. وہ پیر صاحب نے بھی کی تھی ہے، وہ تواڈے واسطے کیتی. دونوں بری ہو گئی. اللہ اکبر. میرا سوال ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، رکوع میں یا سجدے میں یا تشہد میں ان کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے. تو پیچھے جماعت ساری ہے، ہاں. ابھی امام صاحب کیسے نکلے آگے گا؟ میں بتاتا ہوں. پیچھے یہیں سے آگے شروع کر دیتے ہیں. امام صاحب کی گیس خارج ہو گئی. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ اقامت پڑھ رہا ہوتا ہے اس نہیں مکبر نہیں، اقامت پڑھنے والا جو بندہ اقامت پڑھ رہا ہوتا ہے مکبر کہتے ہیں. نہیں، مکبر اور شخص ہوتا ہے. جو اقامت پڑھنے والا ہے مؤذن جس نے اذان دی اور جو اقامت پڑھ رہا ہے تکبیر جس کو پڑھنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، شرعی فرض نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے.
अच्छा, इमाम की गैस खारिज हो गई। इमाम अपने दाएं बाएं में से करीबी तरीन काबिल शख्स, करीबी तरीन काबिल शख्स, बिल्कुल पीछे वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, 3-4 बंदों में हो जाए। पूरी इन 5-7 में कोई नहीं है, साफ के किनारे पे खड़ा है, कोई हर्ज नहीं। आवाज देकर कहेगा मेरा वजू खत्म, आ जाओ। वो नमाज के दौरान अल्लाहु अकबर। वो आगे आ जाएगा। इमाम साहब सारे सफ़ों के अंदर से गुजर के जाएंगे या सफ़ों को चीर के पीछे चले जाएंगे। ना किसी की सफ़ टूटेगी, ना किसी की नमाज टूटेगी, किसी की नमाज में कोई दिक्कत नहीं। वो जो बंदा आगे आया उसने जहाँ नमाज इमाम साहब ने छोड़ी है वहाँ वहीं से- से वो कंटिन्यू कर देगा। सब की नमाज रहेगी, सिर्फ इमाम साहब की ख़त्म हो गई, वो सफ़ में से ही निकल क्या जाएगा, अगर वजू करके फिर शामिल हो सकता है जी वो पीछे शामिल होगा। पीछे शामिल होगा। नहीं जी, मेरा सवाल ये है कि नमाजी पीछे रुकू में है या सजदे में है, हाँ इमाम साहब तो उठ के खड़े हो गए, उनकी पता चल गया उनका वजू टूट गया, हाँ तो पीछे जो नमाजी होंगे वो भी तो रुकू में पड़े होंगे ना, हाँ, या सजदे में पड़े होंगे, ठीक या है। जलसे तो में वो होंगे। अल्लाह अकबर कहेगा ना। अल्लाह अकबर, उसकी तो वजू टूट गया, वो तो नहीं कह सकता। हाँ, नहीं कहेगा ना, उसका वजू टूट गया लेकिन वो अल्लाह अकबर कहेगा अगर रकू में है तो। कफियत को चेंज करवाएगा ना, कफियत को चेंज क्याम में लेकर आए। क्या में लेके आएगा, उनका स्टैंड अप कराएगा, स्टैंड क्या अप। में मतलब अगर एक सजदा उसने कर लिया तो जलसे में बैठ गया और उसका वजू टूट गया, जी, वो यहीं से कोई उसको सलाम फेरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से रुख वो बदलेगा। यहीं से उठ के बगैर अल्लाह अकबर कहे इलानिया बोल देगा मेरा वजू खत्म, चौधरी साहब तुसी आ जाए। वो उसकी बात सुनेगा, वो उसकी वो सुन नमाज के के बाहर हो गया, इमाम साहब तो इमाम नमाज के नमाज बाहर। से बाहर हो गया, वो बंदा उठेगा अपने सीधा उसी रुख, मिसाल के तौर पे, मिसाल मैं दे रहा जी हूँ, जी हुजूर, जी इधर बैठे हैं आप। बहुत पुराना अहम नुक्ता है। मतलब जलसे में टूट गया उसका एक, उसने अब ये हमने एक सजदा कर लिया, और ठीक है जी। ये अभी फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है जी। ये हम क्या है, एक सजदा हमने कर लिया, हम वैसे भी मिसाल के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है, आप वैसे करेंगे। ये हम एक सजदे में चले गए अल्लाह अकबर, ठीक है। अब यहाँ पे इमाम का वजू चला गया, जी ठीक है। अब इसने किया अल्लाह अकबर, सब उठ के बैठ गए, जी, इमाम ने फौरन किया। अब उसने बोला नहीं है, पब्लिक के इंतजार में जब तक अल्लाह अल्लाह अकबर अकबर नहीं कहेगा तब तक कोई बंदा हरकत नहीं करेगा, जी ऐसे ही। ठीक है ना, कॉमन सेंस है। उठ के खड़ा। मेरा वजू खत्म हो गया, कारी साहब बकाया पढ़ाया जी, ऐसे चल भी। ऐसे उठ के नौ चले हाँ, जाए। इसने सिर्फ यूं ही यहाँ नहीं करता, घर से उठ कैसे जाएंगे? चुप करके सीधा इधर आ गया। तीन पाँव की मिकदार जाएंगे ना, 3 फरलांग इसके लिए पूरी गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश है, वहां से चल के आ जाए, पाँव की सीट के आएगा, उठाएगा। कोई उठाने की घसीटने की जरूरत नहीं। ये कानून बदल गया, वो उसका सीना कभी की तरफ ही रहे। उसका सीना काबे की तरफ रहेगा, चेहरा उसका सीधा।